چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی زیر صدارت فل کورٹ اجلاس ہوا۔ سنی اتحاد کونسل کی مخصوص نشستوں سے متعلق فیصلے پر مشاورت۔ سنی اتحاد کونسل کے مخصوص نشستوں سے متعلق محفوظ فیصلہ کل سنائے جانے کا امکان ہے۔ اجلاس تقریباً 1.5 گھنٹے تک جاری رہا۔ 13 رکنی فل کورٹ کے تمام ججز نے شرکت کی ہے اور تمام ججز نے فیصلے کے حوالے سے اپنی رائے دی ہے۔ سپریم کورٹ میں مخصوص نشستوں کے کیس کی 8 سماعتیں ہوئیں۔ پہلی سماعت 3 جون اور آخری 9 جولائی کو ہوئی۔ فل کورٹ نے مخصوص نشستوں کے کیس کا کل فیصلہ محفوظ کیا تھا۔ بڑے کیس کا بڑا فیصلہ کل سنائے جانے کا امکان۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی زیر صدارت فل کورٹ مشاورتی اجلاس۔ سنی اتحاد کونسل کی مخصوص نشستوں سے متعلق کیس پر مشاورت کی۔ ذرائع کے مطابق مشاورتی اجلاس تقریباً 1.5 گھنٹہ جاری رہا، جس میں 13 ججز نے اپنی رائے دی۔ سپریم کورٹ کے فل کورٹ بینچ نے 8 سماعتوں کے بعد کیس کا فیصلہ محفوظ کیا تھا۔ مقدمے کی پہلی سماعت 3 جون جبکہ آخری 9 جولائی کو ہوئی تھی۔ وزیراعظم کا کیا کہنا ہے اس حوالے سے اپنے ناظرین کو بتائیں گے۔ کلچر بن گیا ہے مجھ پر ٹیکس نہ لگائیں، اس پر لگا لے، اس طرح نہیں چلے گا۔ IMF کا نظام ہے، اسے چلانا ہے، کڑوے فیصلے کرنا پڑیں گے۔ وزیراعظم شہباز شریف کی وفاقی کابینہ کے اجلاس میں گفتگو۔ کہا ادب سے عرض کر رہا ہوں، مہربانی کریں کمر کس لیں، یہ ملک کا معاملہ ہے۔ جو اپنی وزارتوں میں انقلاب لائیں گے وہ ہیرو کہلائیں گے۔ معاشی بحالی کے لیے خود احتسابی کی ضرورت ہے، ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے بیٹھیں گے تو کام نہیں چلے گا۔ وفاقی کابینہ کے اجلاس میں وزارتوں اور محکموں کو ختم کرنے کا منصوبہ پیش۔ وزیر اعظم نے بجلی کے بلوں پر فوری ریلیف دینے کی ہدایت کی۔ جو بلیڈنگ ہے 80 ارب روپے سے اندازہ کریں آپ ذرا، کوئی معمولی بات ہے؟ کوئی بجلی کے ڈالے پڑے ہوئے ہیں، چوری ہو رہی ہے، اپنا ٹرانسمیشن لائنز کا بیڑا غرق ہوا ہے اور پھر ہم بیٹھے رہیں تو اس طرح تو کام نہیں ہوگا۔ آپ کی خدمت میں بڑے ادب سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مہربانی کر کے اپنی کمر کسیں اور دن رات محنت کریں۔ یہ ملک کا معاملہ ہے، یہ پاکستان کے وسائل کا معاملہ ہے، اس کو حل کرنے کا معاملہ ہے، پاکستان کو آگے لے کے جانے کا معاملہ ہے۔ 76 سال گزر گئے، 10 لاکھ جو ٹیوب ویل چل رہا ہے تیل کا، $3.5 ارب سالانہ امپورٹ ہو رہی ہے۔ یہاں پر سورج کی شعاعیں کی یہ ملک نعمت سے مالا مال ہے، اس کے بعد ہم فائدہ حاصل نہ کریں اور پاکستان کی معیشت کو برباد ہوتے دیکھتے رہیں تو یہ کس طرح گاڑی چلے گی؟ ڈاؤن سائزنگ اور رائٹ سائزنگ ابھی میں میٹنگ میں لے کے آ رہا ہوں۔ کسی وزارت نے کسی ذرا بھی تساہل سے کام لیا اور ڈیلیئنگ ٹیکٹکس اختیار کیے، I will not tolerate that۔ پاکستان نیشنل شپنگ کارپوریشن 10 جہاز یا 12 جہاز اور 5 ارب کی ان کی تنخواہیں ہیں۔ کراچی پورٹ پر 1200 ارب روپے کی چوری ہو رہی، چوری۔ It will not happen and it must not happen. I'm telling you very frankly۔ وزیر اعظم شہباز شریف قومی اسمبلی میں تحریک انصاف کی قیادت پر برس پڑے۔ کہتے ہیں کہ اسد کیسر جب اسپیکر تھے تو اپوزیشن لیڈر کو بولنے نہیں دیا جاتا تھا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں خدا کا خوف کرو، کوئی شرم کرو، حیا کرو۔ PTI نے جو روایات قائم کی اپنے دور میں اس سے بڑی توہین نہیں ہو سکتی۔ ایوان نے اسٹیٹ آن انٹرپرائزز گورننس اینڈ آپریشنز ترمیمی بل 2024 کا سرِ رائے سے منظور کر لیا۔ PTI دور میں چینر گندم سکینڈل سے اربوں خربوں ڈالرز کمائے گئے۔ وزیراعظم شہباز شریف کا اپوزیشن قیادت پر سنگین الزام، کہا گندم برآمد کرنے کا کوئی فیصلہ نہیں کیا۔ قومی اسمبلی کے اجلاس میں خطاب کرتے ہوئے وزیراعظم نے تحریک انصاف کی قیادت کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا۔ بولے اسد کیسر جب اسپیکر تھے تو اپوزیشن لیڈر کو بولنے نہیں دیا جاتا تھا۔ PTI کے زمانے میں گندم اور چینی برآمد اور درآمد ہوئی۔ میرے اسد کیسر میرے بہت لائق احترام ہے۔ جب یہ اسپیکر تھے اور اس وقت یہ لیڈر دی اپوزیشن کو کس طرح بولنے نہیں دیتے تھے، یہ ریکارڈ کا حصہ ہے، ریکارڈ کا حصہ ہے۔ میں ریکارڈ پہ لانا چاہتا ہوں کہ گندم کی ایکسپورٹ کا کوئی فیصلہ نہیں ہوا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف بھی اپوزیشن پر خوب گرجے اور برسے، کہتے ہیں PTI نے ایک دن میں 52 بل پاس کروائے۔ انہوں نے جو روایات قائم کی اپنے دور میں اسے بڑی توہین نہیں ہو سکتی۔ آدھے گھنٹے کے اندر 52 بلز جو ہے انہوں نے پاس کروائے۔ اس سے بڑی توہین اس ایوان کی کبھی تاریخ میں نہیں ہوئی جو ان کی سپیکرشپ میں جو ہوئی۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے ایوان میں پاکستان شہریت ایکٹ 1951 میں ترمیم کا بل پیش کیا۔ وزیر قانون نے بل کے متعلق بتایا کہ نئی ترمیم کے تحت والدین میں سے کسی ایک کا بھی تعلق پاکستان سے ہو تو بچے کو پاکستان کی شہریت دی جا سکے گی۔ ایوان نے اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز ایکٹ ترمیمی بل بھی منظور کر لیا۔ بل مطابق وفاقی حکومت کسی بھی ریاستی ملکیتی ادارے کے ڈائریکٹر کو عہدے سے ہٹا سکے گی۔ اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف سے میٹرک امتحانات میں لاہور بورڈ کے پوزیشن ہولڈرز طلباء و طالبات کی ملاقات۔
वज़ीर आला मरीम नवाज़ ने पोजीशन होल्डर्स तलबा को ट्रॉफियाँ, तारीफ़ी सर्टिफिकेट और इनामात दिए। वज़ीर आला ने आला तालीम के लिए पोजीशन होल्डर्स की फ़ीस की अदायगी का ऐलान भी किया है। हमारे नुमाइंदे फसीउल्लाह इस मुलाकात का अहवाल बताएंगे। जी फसी। आज बिल्कुल मैट्रिक के इम्तिहान में जो लाहौर बोर्ड के पोजीशन होल्डर हैं उनको आज वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज़ की जानिब से अपने ऑफिस में मदऊ किया गया था और तमाम जो पोजीशन होल्डर हैं उन्होंने ऑफिस में वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज़ से मुलाकात की और इस मुलाकात में उन्होंने आला तालीम के लिए पोजीशन होल्डर्स की फीस की अदायगी का जो ऐलान है वो किया। साथ ही साथ वज़ीर-ए-आला का कहना था कि तलबा की तालीम के तमाम अखराजात जो हैं वो हुकूमत पंजाब अदा करेगी। आला तालीम के लिए वालिदैन पर बोझ नहीं बना चाहती और मासूम तलबा घर के हालात बताते आबीदा हो गई। इसकी फुटेज भी जो है वो देखी जा सकती है। और इसके अलावा जो मरीम नवाज़ थी वो अपनी नशिस्त से उठकर उन तमाम जो पोजीशन होल्डर तलबा जो ऑफिस में उनके बैठे थे उनके दरमियान आकर बैठी और उनसे गुफ्तगू की और उनके जो मिसाइल हैं वो सुने। और इस मौका पर एक तलबा ने कहा कि पहले लोगों ने वादे पूरे नहीं किए, अब पता चल रहा है कि मरीम नवाज़ हमारी जो वज़ीर आला हैं वो अपने वादे पूरे करके दिखाएंगी। ये जो तलबा और मरीम नवाज़ के दरमियान गुफ्तगू हुई है। इसी तरह दीगर जो तलबा थे वो उनके दरमियान भी जो है वो गुफ्तगू जारी रही, जबकि मरीम नवाज़ ने पहली पोजीशन होल्डर को 3-3 लाख, सेकंड को 2-2 लाख और इसी तरह थर्ड पोजीशन होल्डर को 1-1 लाख के जो चेक है वो इनाम के तौर पर दिए हैं। फसी, एक और मुलाकात हुई है मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ से डिप्टी वज़ीर आज़म इसहाक डार की मरी में। इस मुलाकात में क्या डिस्कस किया गया? जी बिल्कुल, मुस्लिम लीग नून के सदर मियां नवाज शरीफ गुज़श्ता 2 हफ्ते से ही मरी में क़याम पजीर है और वहीं पर डिप्टी वज़ीर आज़म इसहाक डार जो है वो मुलाकात के लिए पहुंचे हैं। और ज़राए का कहना है कि दोनों रहनुमाओं में मुलाकात में जो मुल्की सियासी सूरत हाल है उस पर तबादला ख्याल किया गया और हालिया जो गैर मुल्की दौरे इसहाक डार की जानिब से किए गए हैं उस हवाले से जो पेशरफ्त हुई है उस पर उन्होंने अपनी पार्टी के कायद नवाज शरीफ को जो है ब्रीफिंग दी है। साथ ही साथ दोस्त ममालिक के साथ ताल्लुकात में हालिया पेशरफ्त पर जो है ज़राए का कहना है कि मियां नवाज शरीफ की जानिब से इत्मीनान का इजहार किया गया। और मुलाकात में नवाज शरीफ के जो मतवसत तबके के लिए बिजली के बिलों में रिलीफ है उस हवाले से भी गुफ्तगू की गई है और उनकी जानिब से डिप्टी वज़ीर आज़म को हिदायत भी जारी की गई हैं कि हर मुमकिन तरीके से बिलों में जो है वो रिलीफ दिया जाए। बहुत शुक्रिया फसीउल्लाह। इंसाफ का तकाजा है कि चीफ जस्टिस मेरे मुकदमात पर समाअत ना करें। बानी चेयरमैन पीटीआई का चीफ जस्टिस पर एतराज़, नैब तरमीम का लदम करार देने के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील में तहरीरी जवाब जमा करा दिया। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि माजी में करप्शन करने वालों ने कवानीन और पार्लियामेंट को अपनी ढाल बनाया। करप्शन को बचाने के लिए की गई तरमीम अवाम का कानून पर से एतबार उठा देती है। मुझसे दौरान समाअत जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा, तरमीम का फ़ायदा आपको भी होगा, मेरी ज़ात नहीं मुल्क का मामला है। पार्लियामान को कानून साजी आइन के अंदर रहते हुए करनी चाहिए। नैब इख्तियार का गलत इस्तेमाल करे तो तरमीम उसे रोकने की हद तक होनी चाहिए। इख्तियार के गलत इस्तेमाल की मिसाल तो शाखाना केस है। नैब तरामीम का लदम करार देने के खिलाफ इंटर कोर्ट अपीलें खारिज की जाएं। बानी पीटीआई ने सुप्रीम कोर्ट में तहरीरी जवाब जमा करा दिया। साबिक वज़ीर आज़म ने चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा पर अदम एतमाद का इज़हार करते हुए अपने मुकदमात ना सुनने की भी सदा की है। बानी पीटीआई ने कहा है कि माजी के फैसले मद्देनजर रखते हुए और इंसाफ के तकाजे पूरे करने के लिए चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा मेरे केसेस पर समाअत न करें। बानी पीटीआई ने अपने तहरीरी जवाब में कहा कि किसी की करप्शन बचाने के लिए कवानीन में तरामीम किसी बनाने रिपब्लिक में भी नहीं होती। करप्शन मईशत के लिए तबाहकुन और मनफी असरात मुरतब करती है। मुझसे दौरान समाअत जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने कहा कि तरामीम का फायदा आपको भी होगा, मगर मेरा मौक़िफ़ वाज़ेह है कि मेरी ज़ात का नहीं बल्कि मुल्क का मामला है। बानी पीटीआई ने मज़ीद कहा है कि माजी में करप्शन करने वालों ने कवानीन और पार्लियामेंट को अपनी ढाल बनाया। करप्शन को बचाने के लिए की गई तरामीम अवाम का कानून पर से एतबार उठा देती हैं। कवानीन का मकसद किसी फर्द वाहिद के लिए नहीं बल्कि अवाम के लिए होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को हक़ाइक़ के सामने आंखें बंद नहीं करनी चाहिए। परवेज खटक ने 190 मिलियन पाउंड केस में गवाही दे दी है। अदालत ने बयान दिया कि शहजाद अकबर ने बताया था कि पाकिस्तान से गैर कानूनी तौर पर भिजवाई गई बड़ी रकम बरतानिया में पकड़ी गई। ये मामला एजेंडे पर नहीं था, एडिशनल एजेंडे के तौर पर लाया गया था। एडिशनल एजेंडे पर मुझ समेत दीगर अरकान ने एतराज़ किया था। काबीना में रकम के हवाले से कागजात बंद लिफाफे में पेश किए गए। एजेंडे के साथ तहरीर थी, लिखा था रकम प्रॉपर्टी टाइकून के मालिक ने बरतानिया मुंतकिल की। परवेज खटक के बयान के दौरान बानी पीटीआई मुस्कुराते रहे। तर्जुमान तहरीक इंसाफ रऊफ हसन का कहना है कि ये जितने भी ज़मीनी नाखुदा हैं उन तक मैं पैगाम पहुंचाना चाहता हूं, ये जो मर्जी कर लें। बानी पीटीआई ने रवायात को बदल दिया है। बानी पीटीआई ने कहा है कि जितना मर्जी जेल में रख लें, अपने उसूल पर कायम रहूंगा।
साहब ने अपनी फर्स्ट टाइम इन राइटिंग जो है वो चीफ जस्टिस को मुखातब करते हुए और काजी फायज ईसा साहब को एड्रेस करते हुए लिखा है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट का गलत इंटरप्रिटेशन किया और उसको पीटीआई के खिलाफ इस्तेमाल किया। जजमेंट के बारे में जो रिव्यू पिटिशन है वो हमने मूव की, लेकिन वो आज तक पेंडिंग है। ये तो रियासत जो है और एस्टेब्लिशमेंट का एक जो इस वक्त एक एजेंडा है उसको फुलफिल करने के लिए पाकिस्तान की अदालतें इस्तेमाल हो रही हैं खान साहब के खिलाफ घेरा तंग करने के लिए, लेकिन ये इस अपने मज़मूम मकसद में बिल्कुल कामयाब नहीं हो सकेंगे। मैं इन तमाम जो ज़मीनी नाखुदा हैं उन तक एक बड़ा छोटा सा एक मैसेज पहुंचाना चाहता हूँ। साहब ने पाकिस्तान की पॉलिटिकल हिस्ट्री, सियासी तारीख को रीराइट। खेल के मैदान से कुछ आम खबरें। पाकिस्तान क्रिकेट में बड़ी तब्दीलियां, अंदरूनी कहानियां भी सामने आ गईं। हेड कोच गैरी क्रिस्टन ने शाहीन आफरीदी को मुबैना तौर पर नॉन सीरियस करार दे दिया। अपनी रिपोर्ट में खिलाड़ियों के दरमियान लॉबिंग का भी जिक्र किया। आकिब कुरैशी रिपोर्ट कर रहे हैं। पाकिस्तान क्रिकेट में 24 घंटों के दरमियान बड़ी तब्दीलियां। सीनियर टीम मैनेजमेंट वहाब रियाज और मैनेजर मंसूर राना को ओहदे से हटाने की वजूहात सामने आ गईं। ज़राए के मुताबिक हेड कोच गैरी क्रिस्टन और असिस्टेंट कोच अजहर महमूद ने अपनी रिपोर्ट में चंद खिलाड़ियों को नॉन सीरियस करार दिया। कोचेज ने दौरा आयरलैंड, इंग्लैंड और वर्ल्ड कप में मैनेजमेंट और कोचेज के साथ नारवा रवैया रखने पर शाहीन अफरीदी की शिकायत। गैरी क्रिस्टन और अजहर महमूद ने अपनी रिपोर्ट में शाहीन अफरीदी के मुबैना रवैये के मुतालिक तफसील से लिखा। रिपोर्ट में लिखा कि शाहीन अफरीदी के रवैये पर किसी ने एक्शन नहीं लिया। ज़राए के मुताबिक रिपोर्ट में बताया गया है कि शाहीन अफरीदी कोचेज और मैनेजमेंट की बात नहीं सुनते थे और बदतमीजी से पेश आते थे। फास्ट बॉलर्स को वहाब रियाज और मंसूर राना ने रोका भी नहीं, समझाया भी नहीं। ज़राए के मुताबिक रिपोर्ट में कोचेज ने खिलाड़ियों की एक दूसरे के खिलाफ लॉबी करने का भी जिक्र किया। रिपोर्ट में लिखा गया कि खिलाड़ी एक दूसरे के खिलाफ प्लानिंग करते थे जिससे पाकिस्तान का नाम बदनाम हुआ। दूसरी तरफ ज़राए का कहना है कि वहाब रियाज और अब्दुल रज़ाक ने सिलेक्शन में मनमानियां की जिसका चेयरमैन पीसीबी को इल्म था और उन्होंने मुकम्मल तहकीकात के बाद ये फैसला किया। उधर वहाब रियाज ने अपने ऊपर होने वाली बातों की तरदीद की। आकिब कुरैशी, GNN लाहौर। FIA ने बिजली बिलों में इजाफे की तहकीकात मुकम्मल कर ली है। रिपोर्ट में वजारत तवानाई के हुकाम को जिम्मेदार करार दिया गया है। तहकीकाती रिपोर्ट वज़ीर आज़म ऑफिस को इरसाल भी कर दी गई है। रिपोर्ट में वज़ारत पावर हुकाम के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की गई है। जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला वज़ीर आज़म ऑफिस करेगा। सजा का फैसला इंक्वायरी रिपोर्ट की रोशनी में इसी हफ्ते होने का इम्कान है। FIA ने तहकीकात का दायरा मजीद बढ़ा दिया। PPMC के कंसल्टेंट साकिब जमाल को तलबी का नोटिस जारी कर दिया गया।